Good morning, everybody. I'm Dr. Mukesh Parikh, and I'm back with a live class. Today's class is about some important topics, some important terms which you will 100% see in your exam. So kindly show your presence so that we can start the class. Yeah, I can see some of you now. Hello, everybody. As we all have been discussing, Elizabethan theatre, or say a Renaissance theatre before Marlowe and Shakespeare. When we study Shakespeare, तो ज़्यादातर स्टूडेंट को ऐसा लगता है that Shakespeare and Marlowe and Ben Jonson are the only playwrights. But as you all know, that there are other writers also, and constantly questions have been asked, from the other writers. So in today's class, I will be discussing some very important terms. I am in no mood of teaching you any text today, and we will also discuss the quiz I posted on Facebook yesterday. In the night, I posted a quiz, and I found that there were many questions which some of you did very well. Congratulations for that. But I can't answer these kind of questions, Kundan, right now. Don't ask me these questions. Let me continue with the class right now. Okay, so I forgot because somebody asked me a question. So in today's class, let me clear that I will be talking about certain points. So be ready with your pen and notebook, so that the points, if you write and if you make notes of these points, though I have already uploaded the details on the blog, which you can find on my websites mukeshparikh.com and www.englishcosmos.org. Directly you can go there also, but today, as I am not teaching, because even I have no laptop today, so I'll be just talking about and making you note certain points. Clear? So let us start the class. First of all, एलिजाबेथन एज, जिसको हम रेनेसा एज बोलते हैं, जैसे मान लीजिए कि 1550 के बाद से, as we already have been studying that when the theatre was opened, or the first theatre was opened in England, and what kind of performances were there. तो थिएटर के साथ साथ में हमें ये मालूम होना चाहिए कि कॉमेडीज एंड ट्रेजेडीज, you know that these were the only two genres. एक बात. दूसरी बात कि हमें ये भी मालूम है कि because it was Renaissance, and the study material which they were getting was actually a translated version of the Greek or Roman writers. ये बात भी हमें पता है. It means whatever earlier studies, or say the dramas before Shakespeare and Marlowe, whatever dramas we had only the two genres, that is either tragedy or comedy, number one. And number two, देखिए मैं बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि कई बार अगर हमें कोई ऐसा पूछे कि शेक्सपियर अचानक से क्यों फेमस हो गया, एक बहुत बड़ा कारण है. देखिए मैं आपको एक बात बताता हूं. कई बार आपने नोटिस किया होगा कि बहुत पढ़ लिखने से एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, दैट यू ऑलवेज टॉक अबाउट इन अ वेरी अकेडमिक मैनर. तो एंड अकेडमिक मैनर, एंड अकेडमिक का मतलब होता है, जैसे आप बहुत पढ़े लिखे होते हैं तो वो लोग केवल अकेडमिक जार्गन यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आपने देखा होगा कि बहुत सारे बड़े बड़े प्रोफेसर्स, द वे दे राइट देयर रिसर्च पेपर्स, तो उसमें एक एक लाइन में कोटेशंस होती है, और वो टिपिकल जार्गन्स यूज करते हैं. जार्गन का मतलब जानते हैं आप लोग? यस करके बताइए. डू यू नो द मीनिंग ऑफ जार्गन? जार्गन का मतलब होता है अ काइंड ऑफ लिंग्विस्टिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, बिकॉज वी आर स्टूडेंट्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर. तो जार्गन का यहाँ पे मतलब होगा कि पर्टिकुलर फील्ड के वोकैबुलरी का इस्तेमाल करना. हमें एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है इन सब चीज़ों के ऊपर. हालांकि जार्गन के डिक्शनरी में देयर आर टू एंट्रीज. एक जार्गन का मतलब होता है समथिंग विच इज नॉट इजीली अंडरस्टूड. फॉर एग्जाम्पल द चर्पिंग ऑफ द बर्ड्स. तो द चर्पिंग ऑफ द बर्ड्स आपको पता है हमें कुछ समझ नहीं आता है. ओके, एंड द सेकेंडरी मीनिंग ऑफ द वर्ड जार्गन मीन्स इन अ टेक्निकल वे व्हेन यू यूज अ पर्टिकुलर रजिस्टर. लिखिए अभी एक टर्म, एक टर्म लिखिए जार्गन, और दूसरा टर्म लिखिए रजिस्टर. एक टर्म और देता हूं आपको पढ़ाते पढ़ाते. रजिस्टर का मतलब क्या होता है? एक टेक्निकल वोकैबुलरी, एक पर्टिकुलर फील्ड की. हालांकि लिंग्विस्टिक्स में इसको इस तरह से लिया जाता है दैट व्हेन यू आर यूजिंग अ रजिस्टर, फॉर एग्जांपल द रजिस्टर ऑफ अ डॉक्टर, तो अब जार्गन ऑफ अ डॉक्टर भी बोलते हैं.
तो रजिस्टर का मतलब आप इस तरह से ले लीजिए कि एक फील्ड के अंदर रिटन वोकैबुलरी पर्टिकुलरली जो अगर हम उसका यूज करें, देन वी यूज इट इन दैट सेंस कि यार आई एम यूजिंग अ पर्टिकुलर रजिस्टर, दैट ही इज यूजिंग अ मेडिकल रजिस्टर। ठीक है, एक वर्ड और लिखिए आप, दैट इज पैटवॉ, PATOIS, PATOIS, वी प्रोनाउंस इट पैटवॉ। ओके, पटॉइस नहीं बोलना है इसको, वी प्रोनाउंस इट पैटवॉ। पैटवॉ का मतलब भी क्या होता है, एक पर्टिकुलर एरिया की एक लैंग्वेज जो उसकी पहचान बनती है लिंग्विस्टिकली, वो जो डायलेक्ट होती है ना पर्टिकुलर एरिया की, उसको बोलते हैं कि उसमें एक पर्टिकुलर पुट होता है। जैसे जैसे यूपी में जाओगे तो अलग अलग एरियाज में अलग अलग तरह की मैथिली आपको सुनाई देगी। ओके, दो तीन वेराइटीज तो आपको नजर आएंगी, देन यू कैन से दैट दे आर यूजिंग अ पैटवॉ। ओके, एक वर्ड और लिख लीजिए। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही मैं सोचता हूं हर चीज पढ़ाऊं, हालांकि आई हैव स्टार्टेड टीचिंग यू अबाउट एलिजाबेथन थिएटर बिफोर शेक्सपियर एंड मार्लो, बट मेरे माइंड में जो भी आ रहा है मैं सोचता हूं आपको एक्स्ट्रा बातें बताता चला जाऊं। ओके, एंड एक टर्म आप और लिख लीजिए, दैट इज लिंगुआ फ्रेंका। इस चारों ही क्वेश्चन एग्जाम में आ रखे हैं आपके, दैट वी विल कवर व्हेन वी स्टार्ट विद द 6th और 7th सेक्शन। ओके, लिखिए अगला टर्म आप, लिंगुआ फ्रेंका, LINGUA, लिंगुआ फ्रेंका, FRANCA। लिंगुआ फ्रेंका का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है, कनेक्टिव लैंग्वेज और अ कनेक्टिंग लैंग्वेज। जैसे मान लीजिए एक जगह 3 तरह की भाषाएं बोली जाती है और एक आदमी को वो तीनों भाषाओं में से उन तीनों को एक ऐसी भाषा आती है जिससे वो आपस में कम्युनिकेट कर लेते हैं, तो हम बोलेंगे कि वो लिंगुआ फ्रेंका है। फॉर एग्जाम्पल, वी पीपल डोंट नो साउथ इंडियन लैंग्वेजेस एंड साउथ इंडियन ब्रेदरन्स ऑफ आर्स, दे डोंट नो हिंदी, but we both know English, so that way English can become a lingua franca. In that language we all can communicate. Okay, so एक ये टर्म भी आपके काम की है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी और लिंग्विस्टिक टर्म्स में बीच बीच में देता रहूंगा। आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो ये है कि डायरेक्टली मार्लो फेमस नहीं हो गए, डायरेक्टली शेक्सपियर फेमस नहीं हो गए, और मैं बात कर रहा था कि शेक्सपियर आखिर फेमस हुआ तो क्यों, why Marlowe became famous? Because those people used less, they relied less on the way university wits relied on drama and for their material. मैं दोबारा बोलता हूं इस बात को समझाने के लिए कि उन्होंने क्लासिकल एंटिक्विटीज को, ग्रीक राइटर्स को हूबहू ट्रांसलेट नहीं किया, दे स्टार्टेड एडिंग देयर ओन मटेरियल। फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं लेक्चर देते वक्त अगर मैं 100% प्रोनाउंसिएशन जो रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन है उसको मैं यूज करना स्टार्ट कर दूं, और आई डोंट केयर फॉर द नीड ऑफ द अदर स्टूडेंट्स हु डोंट अंडरस्टैंड द प्रोनाउंसिएशन, और मैं हिंदी नहीं बोलूं बीच बीच में, देन दोज स्टूडेंट्स विल बी डिसहार्टेंड बिकॉज दे मोस्टली फील दैट दे आर अनेबल टू कनेक्ट देमसेल्व्स। क्लियर? सो लेकिन अगर मान लीजिए मेरी लैंग्वेज में एक पुट है ऐसा जिससे ऑल कैन कनेक्ट देमसेल्व्स, तो इससे पता चलता है कि मैं ज्यादा पॉपुलर हो जाऊंगा। जैसे कि वो मार्लो या शेक्सपियर ने, आपने नोटिस किया होगा कि इट वाज अ पर्टिकुलर स्पेशलिटी दैट वी सॉ इन द एलिजाबेथन थिएटर, कि विद द स्टेबिलिटी एक खास चीज हुई जो यूरोप के और किसी देश में नहीं हुई। कि एज यू ऑल नो, जैसे अभी मान लीजिए द मटेरियल आई हैव अपलोडेड फॉर टुडेज क्लास, उसमें आप लोग देखोगे कि मैंने जॉन लिली को पर्टिकुलरली अपलोड किया है, बिकॉज यस्टर नाइट जो मैंने आपको फेसबुक पे क्विज दिया था, इन दैट क्विज आई अपलोडेड 1 or 2 क्वेश्चंस रिगार्डिंग जॉन लिली हु वाज अ यूनिवर्सिटी विट्स। ओके, सो उनके प्लेज से रिलेटेड जब मैंने एक दो, क्योंकि वो उन्होंने केवल कॉमेडीज लिखी है एंड ही बिलोंग टू अ रिच फैमिली, एंड व्हेन यू फ्यूज द एनाटॉमी ऑफ विट वाज पब्लिश्ड, तो आपने नोटिस किया होगा कि उसके बाद से वो क्वीन एलिजाबेथ के सामने परफॉर्म करते थे अपने ड्रामास के थ्रू। ब्लैक फ्रायर्स जो थिएटर था वो उसमें उन्हीं के केवल प्लेस चला करते थे, एंड ही यूज्ड टू राइट मोस्टली कॉमेडीज, और वो कॉमेडीज जो अब मैं ये एग्जांपल क्यों दे रहा हूं, क्योंकि उनकी कॉमेडीज में एवरीथिंग ही हैज टेकन फ्रॉम द क्लासिकल एंटिक्विटीज, यानी कि ग्रीक और रोमन मटेरियल से वो कॉमेडीज बनी है। अब इसका मतलब है कि हु विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दोज कंटेंट्स, जो पेरिफेरीज वो अपने डायलॉग्स में यूज करते हैं। क्योंकि यूफ्यूज का मतलब मैं आपको पहले बता चुका हूं, यूफ्यूज का मतलब आपको मालूम है क्या, पहले बताइए। जॉन लिली का सबसे इंपॉर्टेंट बुक है, जैसे कल के क्विज में रात को मैंने आपको पूछा था, कल मैं क्लास नहीं ले पाया तो मैंने आपको क्विज दिया सो दैट यू मे बी एंगेज्ड। देखिए, हमने कल आपको जो क्विज दिया उसमें देयर वाज अ क्वेश्चन दैट हु वाज द मोस्ट स्टाइलिश writer or one who developed the style. So as you all know that यूफ्यूज
यूफ्यूज ने जो एक लिली ने जो बुक लिखी थी यूफ्यूज, उसके बारे में हम बात करेंगे कि दैट बुक वाज इंस्ट्रूमेंटल इन गिविंग बिफोर शेक्सपियरियन टाइम इट गेव अ काइंड ऑफ लैंग्वेज विच वाज द लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट और से द एरिस्टोक्रेटिक पीपल। तो ये इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन बना है जिसको मैंने कल अपलोड किया था। तो अभी हम बात करेंगे, सबसे पहले तो एक टर्म लिखिए कि एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रहा हूं आपके साथ। स्टिकोमीथिया लिखिए, STICHOMYTHIA। If you want me to repeat the spelling, you may ask me again. Keep sharing the video. Keep sharing the video so that other students can be here. Stichomythia. 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 Stichomythia, if we pronounce it. अब ये क्वेश्चन आपको आएगा एग्जाम में। स्टिकोमीथिया क्या होता है? लिखो, इट इज अ रैपिड डायलॉग्स। इट इज अ काइंड ऑफ रैपिड डायलॉग्स स्टफ्ड विथ विटिसिज्म। इट इज अ रैपिड डायलॉग्स, ठीक है। स्टिकोमीथिया एक टर्म है, अगर आप इसकी डिटेल में जाओगे तो आपको आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड इट ऑन माई ब्लॉग विच यू कैन फाइंड ऑन माई वेबसाइट mukeshparekh.com, ठीक है। उसकी डिटेल मैंने वहां दे दी एक नोट लिख करके। तो मैं दोबारा से एक बार स्पेलिंग बोल रहा हूं, STICHOMYTHI, स्टिकोमीथिया। इसका मतलब है रैपिड डायलॉग्स। विटी रिपार्टी होती है ना एक, अगर आपने कभी सुना हो विटी रिपार्टी। विटी रिपार्टी एक वर्ड है जिसका मतलब होता है, अगर एक किसी ने एक सेंटेंस बोला, देखो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट ड्रामा में अगर मान लीजिए मैंने कुछ बोला और उसके शब्दों का कुछ बड़ा रिदमिकल जवाब सामने वाला दे रहा है, तो आधा सेंटेंस मैंने बोला, आधा उधर से आया, फिर मैंने आधा बोला, फिर आधा उधर से आया, तो इसका मतलब है कि एक रिदम सी बैठ जाती है। और ये केवल वर्ड्स ड्रामाज में हो सकता है, या अगर प्रोज ड्रामाज में हुआ भी तो उसमें यूफेमिज्म का बहुत यूज होता है, विच इज ऑल्सो टर्म्ड एज पेरिफ्रेसिस। यूफेमिज्म को पेरिफ्रेसिस भी बोलते हैं। तो एक साथ अपन दो तीन चीजें डिस्कस कर रहे हैं जिन पे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। स्टिकोमीथिया का इंट्रोडक्शन, स्टिकोमीथिया वाज वेरी मच यूज्ड इन द ग्रीक ड्रामास। आप यस बोलते जाइए ताकि मुझे पता चले दैट वी आर कनेक्टेड एंड यू आर रियली टेकिंग बेनिफिट ऑफ द लेक्चर। स्टिकोमीथिया वाज वेरी मच यूज्ड इन द ग्रीक ड्रामा, ठीक है। स्टिकोमीथिया क्या होता है? रैपिड डायलॉग्स होते हैं, एक दूसरे को विटी रिपार्टी करते हैं। विटी रिपार्टी का मतलब होता है, जैसे अगर आपको मैं एक बहुत कॉमन एग्जांपल दूं तो इन मूवीज यू मोस्टली सी दीज काइंड ऑफ डायलॉग्स, ठीक है। तो रैपिड डायलॉग्स होते हैं। अच्छा, अब इस पे क्वेश्चन क्या आएगा? एक फर्स्ट क्वेश्चन दे कैन आस्क यू व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर टर्म, क्लियर। सेकेंड क्वेश्चन कैन बी देयर लाइक हु इंट्रोड्यूस्ड इट इनटू इंग्लिश ड्रामा, बिकॉज इट्स अ ग्रीक टर्म, okay, it was used by George Gascoigne. Write it down, his name. One English dramatist, writer who used it in, or say introduced to English literature, that his name was George की स्पेलिंग आपको आती है, Gascoigne की स्पेलिंग मैं बोल देता हूं, GASCOIGNE, जॉर्ज गेस्कॉइन, ठीक है। सो एक बेसिक बात समझ में आ गई आप लोगों को कि इस पे दो क्वेश्चन बन रहे हैं। कैसा? What is the meaning of schizometia? They can ask you. Second thing, they can ask you its meaning, like, what does it mean? It is a rapid exchange of dialogues, which I have already given you another example by using the term witty repartee. लिख लीजिए, witty, WITTY, repartee, REPARTEE, ठीक है। It was first, because it is a Greek term very much used in the Greek dramas, but into England, in the English theatre, in the English dramatic versions, this was introduced by George Gascoigne. अब आप चाहो तो ब्लॉग पे आ जाइए, तो वहां पे आई हैव अपलोडेड टू डायलॉग्स फ्रॉम, वन इज फ्रॉम मर्चेंट ऑफ वेनिस, द डायलॉग्स बिटवीन शाइलॉक एंड बेसानियो, एंड अनदर वन इज फ्रॉम हैमलेट आफ्टर द मर्डर ऑफ गॉन्जागो वाज प्लेड, तो बिटवीन जर्ट्रूड एंड हैमलेट, वो वहां पे विटी रिपार्टी होती है, so that I can teach you stichomythia through examples also. Okay, if you search there and if you see that or you feel that you have really come there, you can say me, yes,
Otherwise, I'm continuing the class. Examples. Now I'm giving you examples of stichomethia. ठीक है, देखो क्वीन जर्ट्रूड बोलती है, Hamlet, thou hast thy father much offended. Who is the father here? जो पोलोनियस है, इसका हस्बैंड और इसका चाचा. तो वो कह रही है कि हेमलेट, दाउ हैस्ट दाई फादर मच ऑफेंडेड. तो हेमलेट बोलता है, मदर, यू हैव माई फादर मच ऑफेंडेड. अब यहां पे देर इज अ विटिसिज्म that as you all know that there is a pun on the word father, because whom Gertrude, Hamlet's mother, is terming father is actually not father of Hamlet. तो वो कह रही कि तूने अपने फादर को ऑफेंड किया है. तो इसमें एक विटिसिज्म है which was the hallmark of Renaissance theatre. ठीक है, एक टर्म और लिखिए आप ताकि आपको और नॉलेज मिले. राइट डाउन अ वर्ड क्विबल, QUIBBLE, क्विबल. मुझे बताते जाइए इफ यू हैव रिटन इट. यस बोलिए, क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट इस पे वही टिके हैं जिन्होंने पे कर रखा है, एंड दोज यू नो हु हैव टेकन द मटेरियल एंड ऑल. और इन बिटवीन मैं ये भी बता दूं कि आई एम गोइंग टू स्टार्ट ऑन रियल ड्रामास, but that can't be taught on Facebook, so we'll be taking classes on either Zoom or Google, and those classes will be given to only those students who have taken admission in our classes. So जैसे कि मैंने कहा था अगस्त का बैच स्टार्ट होने वाला है, तो वो स्टार्ट हो गया है. एंड आई थिंक मैं अभी भी दिल्ली में ही हूँ, सो आई थिंक विद इन 2 days आई विल बी देयर. तो आई विल स्टार्ट गिविंग यू classes, you know, for the regular, you know, text oriented deep dramas we will start studying, and the poems also. So but I'll be regular, you know, with the Facebook classes also, don't worry. बट जो बच्चे रियल में स्टडी करना चाहते हैं उनके लिए तो यू हैव टू कम टू यू नो माय क्लासेस, रियल क्लासरूम्स थ्रू गूगल और से जूम. तो उसके लिए आपको एडमिशन लेना पड़ेगा, अदरवाइज आपको स्टडी मटेरियल भी नहीं मिल पाएगा. ठीक है, चलिए क्विबल लिख लिया आप लोगों ने. क्विबल का मतलब, आपको एक डॉक्टर जॉनसन की वो लाइन याद है, दैट अ क्विबल फॉर शेक्सपियर इज अ फेटल क्लियोपाट्रा. बोलिए बोलिए, मैंने क्या बोला? A quibble for Shakespeare is a fatal Cleopatra. Fatal Cleopatra क्यों बोला? क्योंकि शेक्सपियर, क्विबल का एक्चुअल मतलब बताऊं क्या होता है? हेयर स्प्लिटिंग और से पन, बहुत सारे मीनिंग्स निकालना, बात में रिपीट रिपार्टी करते चले जाना. तो डॉक्टर जॉनसन ने कमी निकाली. एज यू ऑल नो दैट बिफोर डॉक्टर जॉनसन ऑलमोस्ट ऑल द क्रिटिक्स दे प्रेज्ड हिम एंड दे टर्म्ड हिम बार्ड. लेकिन जब हम डॉक्टर जॉनसन पढ़ते हैं प्रेफेस टू शेक्सपियर, तो आपको मालूम है कि उस डॉक्यूमेंट में द वेरी फर्स्ट थिंग ही सेज कि अगर कोई आदमी मर गया है तो कोई जरूरी नहीं है कि हम उसकी केवल प्रेज ही करें, हम वी कैन, यू नो, क्रिटिसाइज हिम ऑल्सो. एंड देन ही स्टार्ट्स क्रिटिसाइजिंग, मीन्स फाइंडिंग फॉल्ट्स ऑल्सो विद शेक्सपियर. ठीक है, तो मैं उसमें से एक एग्जाम्पल लिया है, दैट अ क्विबल फॉर शेक्सपियर वॉज अ फेटल क्लियोपाट्रा. क्लियोपाट्रा तो पता ही होगा आपको, वो जो इजिप्ट की क्वीन थी. तो आपको पता है नहीं दिल्ली क्लाइमेट सूट नहीं कर रहा है, बिकॉज ये मेरा ससुराल है, और ससुराल वाले आपको पता है ना कई दिन रोक लेते हैं, दैट आपको अभी क्लासेस भी नहीं चल रही हैं, तो बेटर है कि आप यहीं रुक जाओ, यहीं से क्लास ले लो. तो खातिरदारी है, इस वक्त ससुराल में हूं. चलिए, व्हाट आई एम सेइंग, आई वाज टॉकिंग अबाउट क्विबल. तो एक दिन अपन क्लास रखेंगे जिसमें हम लोग आपस में बातचीत करेंगे, क्योंकि हम रेगुलर पढ़ते रहते हैं. मैं आपके गुड मॉर्निंग का भी जवाब नहीं दे पाता हूं, और ये वीडियो जब यूट्यूब पे अपलोड होगा तो स्टूडेंट्स को अगर स्टडी मटेरियल चाहिए तो उनको एडमिशन ले लेना चाहिए क्लासेस में, ताकि उनको स्टडी मटेरियल मिलता रहे. वैशाली उदावत ने पूछा है क्विबल, क्रिटिक मैंने बता दिया है. क्विबल का मतलब होता है पन. पन का मतलब होता है एक वर्ड के कई कई मीनिंग निकल रहे होते हैं. तो शेक्सपियर को डॉक्टर जॉनसन ने क्रिटिसाइज किया था कि वो क्विबल बहुत यूज करते हैं. ठीक है, अभी तो हम एग्जांपल किसका ले रहे हैं? स्टिकोमीथिया का. स्टिकोमीथिया में क्या होता है, एक वर्ड से दूसरा वर्ड निकलता है, एक आधा डायलॉग बोलता है, दूसरा उस डायलॉग में से एक वर्ड निकालता है और वो उसका जवाब देता है, विटी रिपार्टी. इस तरह से एक डायलॉग चलता है. तो अदरवाइज ड्रामाज में होता ही क्या है, यू नो, लिंग्विस्टिक जम्बोरी होता है, एक शेक्सपियरियन और से एलिजाबेथन प्ले. जम्बोरी एक वर्ड है जिसका मतलब होता है फेस्टिवल, अ फेस्टिविटी ऑफ वोकैबुलरी, वर्ड्स 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 वर्ड्स.
हम लोग करेंगे क्या जीवन भर, विल बी डीलिंग इन वर्ड्स. चलिए मैं दोबारा से बोलता हूं. क्वीन बोलती है हैमलेट को, हैमलेट दाउ हैज दाई फादर मच ऑफेंडेड. तो हैमलेट बोलता है, मदर you have my father much offended. Now as you all know that there is a difference between the two, the same word father. Father for queen means his recent husband, and for Hamlet father is senior Hamlet. Okay, that queen bolti hai, come come, you answer with idle tongue. इसका मतलब है वो बोल रही है कि तू बहुत ज्यादा बोलने लगा है, आइडल टंग, कुछ भी बोले जा रहा है. तो हैमलेट बोलता है, गो गो, यू क्वेश्चन विद अ विकेड टंग. तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्टिकोमिथिया. मैं एक और एग्जाम्पल ले लेता हूं, वो थोड़ा सा लेंदी और टफ है. शाइलॉक जो है वो बेसानियो को बोलता है. आपको मालूम है कि बेसानियो, आप लोगों ने पढ़ रखा है मर्चेंट ऑफ वेनिस? नहीं पढ़ रहा है तो हम पढ़ रखा है तो हम पढ़ाएंगे कुछ ही दिनों में अपने रियल क्लासरूम्स में. फेसबुक पे नहीं पढ़ाऊंगा उसमें. शाइलॉक बोल रहा है, आई एम नॉट बाउंड टू प्लीज दी विद माई आंसर. क्योंकि वो बेसानियो बोलता है दे आंसर, तो वो कहता है कि आई एम नॉट बाउंड टू प्लीज दी विद एनी आंसर, माई आंसर. तो बेसानियो बोलता है, डू ऑल मैन किल द थिंग्स दे डू नॉट लव. मतलब उसका आंसर नहीं दिया है, लेकिन तुझे पसंद नहीं तो क्या तू मुझे मार डालेगा? शाइलॉक बोलता है, हेट्स एनी मैन द थिंग ही वुड नॉट किल. तो क्या तू हर उस आदमी से नफरत करेगा जो जो उस चीज को पसंद नहीं करता है? तो बेसानियो बोलता है, एवरी ऑफेंस इज नॉट हेट एट फर्स्ट. बेसानियो का डायलॉग बड़ा फिलोसॉफिकल है. एवरी ऑफेंस इज नॉट हेट एट फर्स्ट. जरूरी नहीं है कि मैंने कुछ गलती की है तो जस्ट बिकॉज ऑफ हेट दैट आई हेट यू. तो शाइलॉक बोलता है, व्हाट वुडस्ट thou have a serpent sting thee twice. तो तू क्या चाहता है कि तू सरपेंट तेरे को 2 बार काटे? इसका मतलब है एक बार काटेगा तो भी सांप का काटना काटना ही है, चाहे वो 2 बार काटे. मतलब कि तूने मुझे हर्ट किया है और तेरा जो हर्ट है वो चाहे हेट की वजह से हो चाहे अननोइंगली हो, यू हैव हर्ट मी. सो ये डायलॉग भी मैंने अपलोड कर दिया मेरे ब्लॉग पे, आप उसको देख लेना. दे कैन आस्क यू दीज क्वेश्चंस फ्रॉम एग्जाम. ठीक है. सो दिस इज अ वेरी स्मॉल डिस्कशन. तो आपको वैशाली ऐसा करना पड़ेगा, ब्लॉग पे जाना पड़ेगा. ठीक है. आई हैव अपलोडेड दिस डायलॉग्स देयर. आफ्टर द क्लास यू कैन गो टू माय वेबसाइट एंड रीड देयर. ठीक है. चलिए अभी टॉपिक पर आते हैं. अब आगे लिखिए, कुछ क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखिए कि जॉर्ज गैस्कॉइन का एक इंपॉर्टेंट वर्क का नाम लिखिए, जोकास्टा. लिखते जाइए सो दैट यू कैन सी दैट यू आर रियली अटेंडिंग अ क्लास. जोकास्टा एक प्ले है रिटन बाय जॉर्ज गैस्कॉइन 1566. ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ सकता है. ठीक है. एक और राइटर का नाम लिखिए, टॉमस प्रेस्टन. टॉमस, ये वो वर्क्स हैं जो ज्यादा पढ़ाए नहीं जाते. यू कैन फाइंड दीज रेफरेंसेज ऑन माई ब्लॉग. आज की 7 जुलाई की जो क्लास है वो मैंने उसका सारा मटेरियल अपलोड कर दिया है ताकि एवरीबडी कैन टेक हेल्प ऑफ. टॉमस प्रेस्टन, उनका एक वर्क बहुत फेमस है, दैट इज Cambyses, Cambyses, Cambyses. It was published in 1569. तो ये क्वेश्चन भी एक बन सकता है आपका. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज नथानियल वुड्स का नाम लिखिए आप. एक और बड़े राइटर हुए हैं जिसके बारे में डिटेल नहीं मिलती है कहीं, बट फ्रॉम द बुक्स ऑफ हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर आई हैव एक्सट्रैक्टेड दिस इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, pieces of information so that you can be benefited. Nathaniel Woods, Nathaniel, Nathaniel तो लिख सकते हो, Woods, Woods, Nathaniel लकड़ी या जंगल, Woods. इसकी बुक का नाम लिखिए, A Conflict of Conscience. A Conflict of Conscience. Conscience का स्पेलिंग है CONSCIENCE. इसको कंसाइंस नहीं पढ़ते हैं, वी प्रोनाउंस इट कॉन्शियंस. अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ कॉन्शियंस. ओके. हाँ, 7 अगस्त के टाइटल पे मैंने उसमें दे रखा है. बट अभी आप केवल लेक्चर सुनो. आज का लेक्चर अटेंड करने के बाद आप ब्लॉग पे जाना. ओके. नथानियल वुड्स, आपने नाम लिख लिया तो यस बोलिए सो दैट यू कैन बी बेनिफिटेड. ये क्वेश्चन, ये वो पॉइंट्स है जिन पे आपको 100% क्वेश्चन दिखेंगे. इजी सा क्विज दिया था मैंने कल रात को आपको, अभी मैं उसको डिस्कस करूंगा. आई विल डिस्कस 5 क्वेश्चंस ऑफ दैट क्विज. और आप लोग रेडी रहिए रेगुलर क्लासेस में. अब जैसे कल सैटरडे है तो मोस्ट प्रोबेबली मैं कल भी क्लास लूंगा, लेकिन संडे को आपकी छुट्टी वुट्टी नहीं होगी.
आई गिव यू अ लॉन्ग क्विज. उसके बाद भी मैंने एक क्विज डाला, लेकिन आप लोगों ने सॉल्व करके नहीं दिया मुझे. सो बी रेगुलर विद योर क्विजेज एंड ऑल. दिन बीतते जाएंगे और एग्जाम का दिन नजदीक आ जाएगा. कोरोना क्राइसिस में बड़ा छुट्टियां हो रही हैं सबकी, तो लेट अस यूटिलाइज दिस टाइम. ठीक है. और जो बहुत सीरियसली लिटरेचर को स्टडी करके और फर्स्ट टाइम जेआरएफ क्लियर करना चाहते हैं फर्स्ट टाइम में, वो फटाफट एडमिशन ले लीजिए, क्योंकि एक बार वो क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी तो उसके बाद में कुछ ना कुछ छूट जाएगा पीछे. तो बेटर है कि उसमें आप एडमिशन ले लें जिनको सीरियसली पढ़ना है. नथानियल वुड्स का नाम लिख लिया. ठीक है. उनकी बुक का नाम क्या है? अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ कॉन्शियंस. इट वाज पब्लिश्ड इन 1581. ये बुक अल्टीमेटली एस्टैब्लिश द जॉनर ऑफ मोरालिटी प्लेस. आपको एक बात पहले भी बता रखी है मैंने कि जब हम एलिजाबेथन लिटरेचर पढ़ते हैं, so one thing is common there, because the drama, as I earlier said, it emanated or it came out, it progressed from church. और चर्च के अंदर आपको पता है या तो मिस्ट्री प्लेस होंगे या मोरालिटी प्लेस होंगे या मिरेकल प्लेस होंगे. तो मोरालिटी का जो एलिमेंट है वो डॉक्टर फॉस्टस तक चला जाता है. अगर हम कोई कॉमन प्ले भी देखते हैं तो हम देखते हैं उसके अंदर देयर इज अ काइंड ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म, a kind of dichotomy, a kind of bifurcation between the good and the bad. That is always present. Okay? तो अब ये बुक्स क्यों इंपॉर्टेंट है पहले ये बता देता हूं. जितने भी 20th सेंचुरी के और 21st सेंचुरी के जो बड़े बड़े क्रिटिक्स हैं, those who deal in say historical neo-historicism, those who deal in new criticism, those who deal in post-structuralism, deconstructionism, from feminist point of view also, all these works are restudied with a great much gusto and say enthusiasm. And now they come to know that not only Shakespeare or Marlowe were the important writers, but earlier also certain things were written. For example, क्या आपने कभी गोलगोथिया नाम का प्ले पढ़ा है जॉन लिली का? तो यू विल बी सरप्राइज्ड कि उसमें क्रॉस ड्रेसिंग का रेफरेंस है एंड उसमें लेस्बियनिज्म का भी रेफरेंस आता है. एंड शेक्सपियर वाज इंस्पायर्ड बाय जॉन लिली मोर, जबकि वो हमको गलतफहमी है कि we were never so serious as we are now owing to your. Oh, thank you so much. You are praising me, I think. Don't praise me. Work hard. Work hard so that you become real, because it's my contribution to the building of my nation. हम सब मैं आपको एक चीज बताता हूं. देखो, मैंने कल यहाँ पे एक चीज सीखी मेरे ससुराल में. जो मेरे ब्रदर इन लॉज हैं, दे आर हाईली क्वालिफाइड पीपल, सो वी यूजुअली हैव अ लॉट मच डिस्कशंस एंड ऑल. तो आपको पता है आरएसएस की एक प्रार्थना होती है, अगर आपको पता हो तो, जिसमें होता है नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि त्वया हिंद भूमि सुखम वर्धितो हम. तो वो जो है महामंगले पुण्य भूमि त्वदर्थे पतत्वेशिकायो नमस्ते नमस्ते. अगर आप कभी इनके मीनिंग ढूंढेंगे ना, तो यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट व्हाट दे टीच दैट वी and our life is not for the material wealth, for the accumulation of the material wealth, but to do every effort for this motherland, that is Hind Bhumi. So जो कुछ भी मैं कर रहा हूं, मुझे मालूम है कि बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन तक ये नॉलेज पहुंच रही है, उनके एग्जाम में उनको फर्क पड़ेगा. आई थिंक उनका स्टडी करने का पैटर्न बदल सकता है, बिकॉज द वे वी what is this? A didactic morning to all of you and Reverend Sir. ठीक है, didactic morning, what is that? मधुसूदन, आप मेरे से एक बार अलग से व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करना बेटा आज. आई हैव टू टॉक टू यू रिगार्डिंग वन थिंग. ठीक है, चलिए. गुड मॉर्निंग. नथानियल वुड्स की बुक है अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ कॉन्शियंस. इस बुक पे क्वेश्चन आ सकता है, लिख लीजिए 1581. व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट दैट दिस बुक जैसे कि नाम ही बता रहा है, अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ कॉन्शियंस, कि आपकी अंतरात्मा में जो द्वंद्व चलता है. कॉन्फ्लिक्ट का मतलब आपको पता ही होगा. तो ये बुक जो है वो उस एज की, एलिजाबेथन प्री शेक्सपियरियन एज का जो कॉन्फ्लिक्ट है, क्या लोगों में क्योंकि हम समझ सकते हैं कि हर एज का अपना एक कॉन्फ्लिक्ट होता है. हर एज का, जैसे हमारे हिंदुओं में तो सतयुग था, द्वापर युग था, त्रेता युग था, अभी कलयुग चल रहा है, प्रथम चरण चल रहा है कलयुग का व्यवस् मनवंतर में, और प्रमादी संवत्सर है इस वक्त 2077. तो आई थिंक डिटेल में हमारा कालखंड चलता है, और उसमें हमें मालूम है कि अभी की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस पर्टिकुलर इरा आर क्वाइट डिफरेंट देन दे वर अर्लियर.
तो बिल्कुल हम लोगों को ये बुक्स पढ़नी पड़ती हैं, और उनमें से ही वो क्वेश्चन पूछते हैं। इसीलिए हर नेट में इट्स अ सरप्राइज फॉर एवरीबॉडी कि ये कहाँ से आई किताब, इसीलिए मैं बताता जा रहा हूँ। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। उसके बाद आप नाम लिखिए निकोलस उडाल, NICHOLAS, निकोलस उडाल। ये नाम तो बहुत कॉमनली बुक्स में आप देखते हो। ये एक रेनेसां ह्यूमनिस्ट थे। ही वाज टॉट एट ऑक्सफोर्ड। ओके, ये वेस्टमिंस्टर में हेडमास्टर थे, और ये जो थे उन्होंने फर्स्ट इंग्लिश ओरिजिनल कॉमेडी लिखी थी। निकोलस उडाल रोड द फर्स्ट ओरिजिनल इंग्लिश कॉमेडी, ठीक है। रैल्फ रॉयस्टर डॉयस्टर, रैल्फ रॉयस्टर डॉयस्टर। दिस इज नॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, पार्ट ऑफ इंफॉर्मेशन विच आई इम्पार्ट टू यू, बिकॉज ये तो आपको कई जगह मिल जाएगा कि भाई फर्स्ट कॉमेडी कौन सी है। ओके, उसके बाद आप आ जाइए। एक और मैं कॉमेडी का नाम ले लेता हूं जो आपको एग्जाम में पूछी गई है, एंड दे कैन आस्क यू अगैन। दैट इज गैमर गर्टन्स नीडल। गैमर, GAMMER, गैमर गर्टन, GURTON, गैमर गर्टन्स नीडल। इट वॉज रिटन इन 1566। ओके, इसमें जो गर्टन वर्ड है वो एक औरत है, ओल्ड वुमन। तो एक पूरी फार्स है, एक कॉमेडी की कैटेगरी में नहीं आता है। देयर आर टू थिंग्स, वन इज फार्स, अनदर वन इज कॉमेडी। फार्स का मतलब आपको पता है तो बताओ मुझे। कैन यू हियर मी, कैन यू सी मी? देन से इधर राइट यस और respond also. That do you know the difference between farce and comedy? Do you know the difference between farce and comedy? कोई आंसर नहीं आ रहा है। चलिए मैं बताता हूं। फार्स का मतलब क्या होता है, जिसमें बहुत सारी थोड़ी सी नॉन स्टैंडर्ड एक्टिविटीज दिखाते हैं। जैसे एक एग्जांपल देके बताता हूं। जैसे आपने कई फिल्मों में देखा होगा, एक दूसरे पर केक फेंकना, फिसल के गिर जाना। मतलब देयर मेजर पर्पस इन शोइंग दैट पर्टिकुलर ड्रामा इज टू प्रोवोक लाफ्टर। ओके, एंड दैट लाफ्टर इज नॉट अ जेन्युइन लाफ्टर फ्रॉम इंटेलेक्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू। आई होप यू अंडरस्टैंड। एक बात का हमेशा ध्यान रखिएगा कि ट्रेजेडी का एग्जैक्टली क्या मतलब होता है, कॉमेडी का एग्जैक्टली क्या मतलब होता है। कॉमेडी का एक लाइटली मीनिंग ले लेते हैं कि ठीक है, कोई चीज जो हंसा रही है वो कॉमेडी है, बट देन देयर आर डिफरेंट लेवल्स ऑफ कॉमेडी। जैसे राजू श्रीवास्तव जी हैं, आप जानते होंगे उनको। राजू श्रीवास्तव की कॉमेडी में वल्गैरिटी नहीं होती है, कभी आप नोटिस करेंगे। बट अगर आप दूसरे कॉमेडियंस को देखोगे तो आपने नोटिस किया होगा कि वो बहुत ज्यादा वल्गैरिटी यूज करते हैं। सो फार्स इज देयर, यू नो, वेयर देयर कैन बी अ काइंड ऑफ वल्गैरिटी। ओके, बट कॉमेडी कैन बी हाई ऑल्सो, लाइक ब्लैक कॉमेडी। एक कॉमेडी की कैटेगरी होती है ब्लैक कॉमेडी। जैसे अगर आपको फिल्म याद आ रही है खोसला का घोंसला, तो आपने देखा होगा हंसाते हंसाते उसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर चोट की गई है कि कैसे एक आम आदमी का पैसा लूट लिया जाता है जमीन खरीदने के नाम पर। ओके, सो व्हेन द real and deeper and higher truths of human beings are addressed in a murkier way, in a murky एक word है, मतलब थोड़ा सा gloomy atmosphere के साथ में, where you know we are feel threatened, but it is comedy because you know laughter is side by side provoked. इस तरह की कॉमेडीज को ब्लैक कॉमेडी बोलते हैं, ठीक है। और कॉमन कॉमेडी जैसे रोमांटिक कॉमेडी होती है शेक्सपियर की, तो यू मस्ट हैव सीन दैट यू नो देयर आर सर्टेन थिंग्स व्हिच कैन नॉट हैपन इन द रियल लाइफ, बट वो सब वहां पे दिखा रहे हैं, तो उनको अपन इंग्लिश में बोलते हैं रोमांटिक कॉमेडी। क्योंकि जो रोमांटिक वर्ड है, रोमांटिक वर्ड का मतलब सबको पता है क्या, पहले बताओ, उसके बाद ही आगे का लेक्चर दूंगा। आर यू अवेयर अबाउट द वर्ड रोमांटिक? लाइक व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड रोमांटिक? आज का आपका होमवर्क है। एक तो मैंने कल डांट लगाई थी एक ग्रुप को कि सारे स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, कोई भी मटेरियल उसका कोई जवाब नहीं देते, क्विज नहीं सॉल्व करते, वीडियोज में अपलोड करता हूं वीडियोज नहीं देखते हैं। तो देखिए, एक काम कीजिए, आप साइको एनालिसिस के सारे वीडियोस देख लीजिए जो मैंने अपलोड कर रखे हैं यूट्यूब पे, बिकॉज इन द कमिंग नेक्स्ट मंडे से हो सकता है मैं साइको एनालिसिस पे लेक्चर दूं और फिर हम उस पर रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करें, ठीक है। तो एक बार आप अगर वो 3 या 4 वीडियोस अपलोडेड हैं उनको देख लोगे आज ढंग से, आज कल में, और स्ट्रक्चरलिज्म पे भी देख लीजिए, ताकि हम उन पे एक अच्छा सा टेस्ट ले सकें आपका, ठीक है। और वेट फॉर द क्विज, जो कुछ भी इन 4-5 क्लासेस में मैंने पढ़ा है, अराउंड 10 क्लासेस हो जाएंगी एलिजाबेथन एज पे, शेक्सपियर स्टार्ट करने से पहले, उस पर भी मैं आपका क्विज लूंगा, आपको मैं एमसीक्यूज दूंगा, आपका एग्जाम से रिलेटेड मैं टेस्ट लूंगा, ठीक है। चलिए, सो आई वाज टॉकिंग अबाउट
हाँ, मैं कॉमेडीज की कैटेगरीज की बात कर रहा था। रोमांटिक कॉमेडी आपको पता है कि नहीं पता है? रोमांटिक वर्ड पता है कि नहीं पता है? तो देखिए, रोमांटिक का एक्चुअल मीनिंग कई बच्चों को मालूम नहीं होता है। रोमांटिक का मतलब वो वही लेते हैं कि साहब हमारे, जैसे दो औरतें बात कर रही हैं आपस में कि हमारे ये तो बड़े रोमांटिक हैं, है ना, वही वाला रोमांटिक। इट्स नॉट पर्टेनिंग टू लव ओनली। रोमांटिक मीन्स सोल्जर, शिवलरी। माय गॉड, हुमा खान, बिल्कुल तुमसे अवार्ड छीन लिया जाएगा। एमए की डिग्री हम छीन लेंगे तुमसे। सॉरी, आई एम बिट इन अ जॉली मूड। चलिए मैं समझाता हूं आपको रोमांटिक क्या होता है। रोमांटिक का मतलब होता है, फर्स्ट एंट्री इन दिस वर्ड इज फ्रॉम द रिमोट, दूर। रिमोट का मतलब होता है दूर। सेकेंड वन इज रोमन, दैट इज न्यू, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज में लेक्सिकॉन में जब ये रोमन वर्ड आया इट मीन्स न्यू, समथिंग न्यू, ओके। और तीसरा वर्ड है रोमांस। रोमांस का मतलब इंग्लिश में होता है, एक्चुअल में जैसे कोई रोमांस लिखा है किसी ने, इसका मतलब है दूर की बात करना। इट्स फार फेच्ड, दूर, बहुत दूर की चीज। तो इमेजिनेशन इज इन्वॉल्व इन दैट, क्लियर। सो एनीथिंग विच इज रोमांटिक मीन्स, जैसे एक एग्जाम्पल देता हूं, जैसे मैं बोलूं जोर से भारत माता की जय, लेकिन अगर मैं कहूं कि चलो अपनी जान दे दो भारत माता के लिए, तो एक मिनट में घरों में घुस जाएंगे सब। किसी को कह दो कि बिना फायदे के कुछ साल या कुछ दिनों तक पढ़ा दो लोगों को, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं कि तुम्हें कुछ ज्यादा बेनिफिट नहीं हो रहा, लेकिन चलो दो कुछ लोगों को निकाल के, तो देन यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट पर्सनल बेनिफिट। इट मीन्स आवर पेट्रियाटिज्म इज ओनली रोमांटिक, केवल ख्याली है। रियल पेट्रियाटिज्म क्या है कि एवर रेडी टू ले हिज और हर लाइफ फॉर हिज मदरलैंड। तो बात क्या चल रही है, आपको मैं रोमांटिक वर्ड समझा रहा हूं कि रोमांटिक कॉमेडी का मतलब होता है सर्टन इमेजिनरी सिचुएशंस आर देयर which are not really based either or cannot be seen in real life, ठीक है। सो रोमांटिक कॉमेडी होगी तो जैसे एज यू लाइक इट है, ट्वेल्थ नाइट है, आपके सामने कोई लड़की लड़के का भेस बदल के डिस्गाइज करके इम्प्रोवाइज करेगी, बोलेगी, तो कांट वी आइडेंटिफाई, ऐसा हो ही नहीं सकता। हम एक सेकंड में समझ जाएंगे कि ये तो लड़की है जो लड़का बनी हुई है, या लड़का जो लड़की बना हुआ है। बट इन मूवीज वी आर शोन दैट, थैंक यू फॉर, ओके पुष्पिता, थैंक यू, आई वेलकम। चलिए, तो ये जो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें इसको देखिए, इसीलिए मैं हमेशा अपनी कोई भी क्लास आप उठा के देखिए, आई ऑलवेज से दैट वोकैबुलरी इज वेरी इंपॉर्टेंट, और आपका एक एक वर्ड को चुन के समझ के एटिमोलॉजी की तरफ जा करके और पढ़ते पढ़ते आपको लगेगा। जैसे मुझे एक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कल परसों कुछ देखते हुए, द डिफरेंस बिटवीन जय एंड विजय। तो मुझे पता चला कि जो विजय वर्ड है इसमें तो कोई एनिमी है और उसने आप पे विजय प्राप्त कर ली, है ना। तो इसका मतलब है मधुसूदन जी, दैट इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ इंडिविजुअलिज्म, एंड वो रोमांटिक जो पोइट्री है ना उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में आ जाता है कि व्हाट इज रोमांटिसिज्म। एंड हियर वी डिड नॉट टॉक अबाउट रोमांटिसिज्म, वी टॉक्ड अबाउट व्हाट इज रोमांस एंड रोमांटिक। तो जब आपने जो क्वालिटीज मुझे बताई है ना, फोकसेस ऑन इंडिविजुअलिज्म, गिव इंपॉर्टेंस टू इमेजिनेशन, नेचर, ये वो चीजें हैं जो वर्ड्सवर्थ कॉलरिज के रोमांटिसिज्म में आई। दैट इज अ डिफरेंट रोमांटिसिज्म। आपको तो केवल बेस समझाया जा रहा है सो दैट यू पीपल कैन यूज द वर्ड रोमांटिक, ठीक है। सो आई वाज टॉकिंग अबाउट जय एंड विजय, कि मुझे पता चला कि विजय का मतलब है देयर इज एन एनिमी, सो यू शुड नॉट हैव अ कॉन्सेप्ट ऑफ विजय ऑल द टाइम। व्हाई कांट वी थिंक अबाउट वेयर एवरीबडी इज विक्टोरियस एंड ट्रायम्फेंट, उसको बोलते हैं जय। तो मैंने देखा कि हमारी जो वोकैबुलरी है, वेदर इट इज अवर मदर टंग और से अवर रीजनल डायलेक्ट और अवर प्रोफेशनल लैंग्वेज दैट इज इंग्लिश, जो हमें कमाने को देगी, जिससे हमारा करियर बनेगा, वी शुड बी डैम क्लियर विद वोकैबुलरी। इसीलिए अपनी वोकैबुलरी इंप्रूव करते रहिए। अगर कोई भी सिंसियर टीचर है वो यही कहेगा, उठा लीजिए शेक्सपियर हाथ में और ओरिजिनल उसको पढ़ना स्टार्ट करिए, एक एक वर्ड की गहराई में जाइए, ओके। मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, लेकिन अभी जैसे डायडेक्टिक वर्ड यूज किया गया, आपको मालूम होना चाहिए डायडेक्टिक का मतलब क्या होता है। डायडेक्टिक का मतलब क्या होता है, जब आप अथॉरिटेटिव हो जाते हो। जैसे मेरे हाथ में अथॉरिटी है और मैं आपको हुक्म दूं किताबें खोलो, या बाइबल की जो भाषा है, गीता की जो भाषा है, आपने देखा होगा कभी उपदेशात्मक वो भाषा होती है, जैसे कोई आचार्य अपने शिष्यों को कह रहे हैं कि जैसे बाइबल की लैंग्वेज क्या है, आपने कभी नोटिस किया होगा, दाउ शैल्ट नॉट चीट, दाउ शैल्ट नॉट स्टील, तू ऐसा नहीं करेगा,
जैसे उसमें इंपैरेटिव सेंटेंसेस होते हैं, तो तब हम ये वर्ड यूज करते हैं डाइडेक्टिक। ओके, सो मैं क्या कहना चाह रहा हूं इसमें कि वोकैबुलरी की तरफ बहुत ध्यान देने पे आपका लिटरेचर ऑटोमेटिकली अच्छा होता चला जाएगा, एंड यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्ट। ओके, I'm so thankful that you understand and value the importance of this lecture। और ये जरूरी भी है, तुम भी टीचर बनोगे, केवल कोर्स खत्म करके आने की जरूरत नहीं है। कोर्स खत्म, आप इस लायक बना दो स्टूडेंट्स को कि वो अपना कोर्स अपने आप ही खत्म करने लगते हैं, ठीक है। और एक चीज जो हमारे अंदर कूट कूट के भरी होनी चाहिए वो है दैट वी शुड बी ऑलवेज bit benevolent for the other people। clear? So ये कुछ जानकारियां जो मैंने आपको दी। उसके बाद आई एक important term which you can find on the blog you know at the very starting, that is the master of rebels। अगली term लिख लीजिए आप, the master of rebels, REVELS। rebels का मतलब आपको मालूम है? में से do you know the meaning of rebels? rebel एक वर्ड है इंग्लिश में, एंटरटेनमेंट को बहुत ज्यादा मजा करना, उछलना कूदना, यू नो, मैरी मेकिंग जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, MERRY, मैरी मेकिंग। सो मास्टर ऑफ रेबल्स, अब ये इंपॉर्टेंट टर्म है, दिस कैन बी आस्क्ड इन योर एग्जाम। एक्चुअली ड्रामा इन द रॉयल कोर्ट, हाउ इट इज टू बी परफॉर्म्ड, which drama should be given the license, what kind of dresses should be worn by the you know the actors, which language are they using, ये सारी चीजें जो डिसाइड करता था उसको बोलते थे द मास्टर ऑफ रेबल्स। प्ले को सेलेक्ट करना, उसके सामने रिहर्सल्स हुआ करती थी, उसके सामने मतलब एक बार पूरा का पूरा जो परफॉर्मेंस है वो द मास्टर ऑफ रेबल्स के सामने हुआ करता था। सो दे कैन आस्क यू अ क्वेश्चन लाइक, यू नो, हु इज अ मास्टर ऑफ रेबल्स। तो ये एक बात समझ में आई। नाउ एक डिपार्टमेंट है जो रॉयल हाउस होल्ड में होता है, and this department, master of rebels, it is responsible for the coordination of theatrical entertainment particularly। ठीक है, अब इसमें नाम आता है सर एडमंड टिल्ने, that have already, the name has already been, and the detail of related to this particular name has already been uploaded on my blog। आप देख लीजिएगा, आज घर पे बैठ के पढ़िएगा उसको डिटेल में, नोट्स बनाइएगा अपने। सर एडमंड टिल्ने नाम लिख लीजिए, सर Edmund Tilney। If the terms this appellation, this title sir, it itself tells us that, you know, उसको एक you know order of merit की उपाधि दी जाती है, तभी ये सर वर्ड लगाया जाता है। सर के बारे में भी आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जैसे सलमान रश्दी को भी ऑर्डर ऑफ मेरिट दिया गया है, ठीक है। सो ये एक रॉयल परिवार की तरफ से एक ऑर्डर ऑफ मेरिट दिया जाता है। तो आपने कई बार विकिपीडिया में पढ़ा होगा ओम लिखा होता है, तो दिस कैपिटल O कैपिटल M, इसका मतलब होता है ऑर्डर ऑफ मेरिट, ठीक है। तो रॉयल फैमिली से होते हैं ये लोग, या उनको रॉयल फैमिलीज अपनी तरफ से कुछ टाइटल्स देती हैं, तब उनके आगे सर लगता है। सो सर एडमंड टिल्ने, ही वाज द मोस्ट फेमस मास्टर ऑफ द रेबल्स। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, आ सकता है आगे। ही वाज इंस्ट्रूमेंटल इन द डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश ड्रामा ऑफ एलिजाबेथन पीरियड। दैट्स व्हाई दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, दैट जितने भी हम ड्रामास देखते हैं ना, जैसे आपको पता है कोई पर्टिकुलर किसी संस्था का हेड बनाया जाता है, आपने देखा होगा उस पर्टिकुलर हेड की अध्यक्षता में कुछ साल तक कोई चीज बहुत ज्यादा तरक्की करती है। और जैसे कोई ब्रॉडकास्ट मिनिस्टर है मान लीजिए, और उसने उस वक्त उन चीजों को दूरदर्शन पे दिखाने की अनुमति दी, और आप देखते हो कि दूरदर्शन के अंदर जितने भी बेस्ट प्रोग्राम्स हैं वो 80s के और 90s के बीच में जो पूरा डेकेड गया है उसमें थे। उसका कारण है कि कौन ब्रॉडकास्ट मिनिस्टर है। तो ऐसे ही मास्टर ऑफ रेबल्स में द सर एडमंड टिल्ने का नाम बहुत फेमस है, ठीक है। यूफ्यूज के बारे में हम बात कर ही चुके हैं, उसका सबटाइटल पूछ सकते हैं एग्जाम में। यूफ्यूज जो जॉन लिली की सबसे फेमस बुक है, द एनाटॉमी ऑफ विट, 1578 में पब्लिश हुई। अब मैं बात करूंगा यूफ्यूज के बारे में, दैट इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड, उसका मीनिंग होता है ग्रेसफुल और विटी। मैं यूफ्यूज पे थोड़ा और बोल रहा हूं। यूफ्यूज दैट वर्क, जिसका कल मैंने क्विज में भी आपसे पूछा था क्वेश्चन, इसका मीनिंग होता है ग्रेसफुल एंड विटी। समवन हु इज यूजिंग हिज विट ऑल्सो एंड समवन हु इज क्वाइट ग्रेसफुल ऑल्सो, क्लियर। अच्छा, अभी क्वेश्चन बनता है, एक और क्वेश्चन बनता है कि जॉन लिली ने यूफ्यूज वर्ड का मीनिंग तो चलो ग्रीक से ले लिया, पर वो वर्ड कहां से लिया? उसका क्वेश्चन का आंसर है दैट ही अडॉप्टेड दिस फ्रॉम रोजर एस्कैम्स द स्कूल मास्टर। रोजर एस्कैम के बारे में मैंने बता रखा है, क्वीन एलिजाबेथ के टीचर थे वो,
ही वॉज वेरी स्ट्रिक्ट एंड ही एस्टैब्लिश्ड लैटिन एज अ लैंग्वेज, ठीक है। ऐसे करके आपने पहले भी रोजर एस्चैम का नाम, या जिसको रोजर एस्चैम भी बोल सकते हो, रोजर एस्कैम भी बोल सकते हो, ठीक है। उनकी बुक है द स्कूल मास्टर, उसके अंदर ये कैरेक्टर है यूफ्यूज, फ्रॉम देयर ही हैज टेकन दिस नेम, ठीक है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज इंपॉर्टेंट थिंग्स विच आई वांटेड टू डिस्कस विद यू। अब मैं थोड़ा सा क्विज डिस्कस कर लूँ। जो फेसबुक पे नहीं थे कल रात को, वो आज देख लीजिएगा। देयर वर सर्टेन क्वेश्चंस एक्चुअली। एक क्वेश्चन मैंने पूछा था दैट देयर वाज अ यूनिवर्सिटी विट हु वाज किल्ड इन अ टैवर्न। अभी भी आप आंसर दे सकते हो, कौन वो यूनिवर्सिटी विट था। यूनिवर्सिटी विट्स में बहुत सारे नाम आते हैं, किड का नाम आता है, ग्रीन का, लिली का, मार्लो का। सो डू यू रिमेंबर अ पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी विट? ही वॉज किल्ड इन अ टैवर्न। बताइए, इन चारों में से किड, थॉमस किड था, ग्रीन था, लिली था कि मार्लो था? तो इसमें कई बच्चों का आंसर करेक्ट है, ज्यादातर करेक्ट था। सो इट वाज मार्लो। एट द एज ऑफ 29 ही वाज किल्ड, ओके। और उसके बारे में भी आई विल अपलोड सम अदर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन टुडे, एंड आई थिंक इन नेक्स्ट क्लास विल बी डिस्कसिंग दिस क्वेश्चन इन डिटेल। सेकेंड क्वेश्चन इज द डिफेंस ऑफ राइम। ये इंपॉर्टेंट बुक जो एलिजाबेथन एज में लिखी गई, ये किसने लिखी? इट वॉज पब्लिश्ड इन 1530। बुक का नाम है द डिफेंस ऑफ राइम, ठीक है। किसने लिखी थी? इसमें 4 ऑप्शन दिए थे मैंने आप लोगों को कि क्या ये सिडनी ने लिखी थी, फिलिप सिडनी, क्या ये सैमुअल डैनियल ने लिखी थी, ग्रीन ने, या नन ऑफ दिस। सो द डिफेंस ऑफ राइम 1530 में जो बुक लिखी गई थी वो थी सैमुअल डैनियल के द्वारा, ठीक है, जिन्होंने सोनेट सीक्वेंस भी लिखा था। सो द डिफेंस ऑफ राइम, यू कैन अंडरस्टैंड दैट ही इज डिफेंडिंग इन दिस बुक। अब उसकी डिटेल थोड़ा सा पूछ सकते हैं। सो एज अ सीरियस स्टूडेंट व्हाट यू कैन डू, यू कैन गो टुडे एंड मैंने जो आपको कुछ बुक्स के आज नाम बताए, जैसे मान लीजिए अभी थोड़ी देर पहले कॉन्फ्लिक्ट ऑफ कॉन्शियंस, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ कॉन्शियंस की बात चली, जैसे स्टिकोमिथिया की बात चली क्लास में, या कि गैमर गर्टन नीडल की बात चली, है ना। तो इन सब के बारे में आप थोड़ा और डिटेल ले लीजिए। हालांकि इसकी बहुत डिटेल मैंने आपको दे रखी। मैंने पेरिफ्रेसिस वर्ड यूज किया। ये जो यूफ्यूज होता है उसमें एक्चुअल में पेरिफ्रेसिस यूज होता है। पेरिफ्रेसिस एक लिटरेरी टर्म है। इट मीन्स सर्कमलोक्यूटरी, समवन हु टॉक्स इन अ राउंड अबाउट मैनर, जैसे टू द पॉइंट बात ना करके थोड़ा उसको घुमा के बात करना। और जब हम घुमा के बात करते हैं तो उसमें बहुत ज्यादा एक और लिटरेरी टर्म यूज कर लेता हूं, प्लियोनाज्म। इसके अलावा लेक्चर में आपको आज मैंने रजिस्टर, फैटवा, लिंगुआ फ्रैंका, जार्गन, इन शब्दों को भी डिटेल में समझाया। तो एक एक मिनट में कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट मैं दे रहा हूं ताकि आपका एग्जाम से रिलेटेड कुछ ना कुछ क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। सो द सेकेंड क्वेश्चन जिसमें मैंने द डिफेंस ऑफ राइम पूछा था, उसका डिटेल थोड़ा पढ़िए, ठीक है। बिकॉज इन दैट एज देयर वर अदर पीपल हु वर सेइंग दैट देयर इज नो नीड ऑफ राइम, ठीक है। आपको मालूम होना चाहिए कि डॉक्टर जॉनसन ने जो प्रेफिस टू डॉक्टर जॉनसन ने जो essay on dramatic poesy लिखा है, in that book also, in that essay also, he is at the end discussing that a play should be in blank verse or in a rhyme, ठीक है। तो आपको मालूम है कि उसके अंदर उन्होंने कहा है कि it can be in rhyme also, but rhyme कहाँ होनी चाहिए, कहाँ नहीं होनी चाहिए, okay। So these things are very important from literary point of view, तो उसको पढ़िएगा। Third question was it was a very simple question and I think all answered it correctly, that Bacon borrowed the term essay from which writer? Bacon, Francis Bacon, who was the first essay writer। हालांकि ऐसा नहीं है, आप एक काम कीजिएगा आज, जब हम लोग यूनिवर्सिटी विट्स की तरफ जाते हैं ना, तो यूनिवर्सिटी विट्स ने जो प्रोज वर्क्स लिखे हैं उसमें मैंने एक वीडियो अपलोड कर रखा है। इफ यू वॉच दिस वीडियो टुडे thoroughly and make your notes, you will be surprised when you find that you will see questions there in your exam from that, and that is the video which is highly appreciated by serious students। आपको मालूम है मेरे YouTube चैनल पे केवल सीरियस स्टूडेंट ही उसको स्टडी करते हैं, क्योंकि पूरी 1 घंटे की वीडियो देखने के लिए एक ऐसा स्टूडेंट होना चाहिए जिसमें पेशेंस है और जिसको मालूम है कि हाँ कुछ इंपॉर्टेंट मुझे मिल रहा है तो मुझे बैठ करके उसको सुनना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आप एक वीडियो देखेंगे आज। When I say that Bacon was the first prose writer, then I'm wrong, I'm sorry, because I cannot say that Bacon was the first prose writer, because essays, not essays, but prose work had already been written and was famous in England, clear. Euphues was also in prose, but as per essay is concerned, this particular term essay he borrowed from Montaigne। तो मैंने 4-5 ऑप्शन दिए थे, जैसे डिम्यू मैंने एक ऑप्शन दिया था, गेथे एक ऑप्शन दिया था, मॉन्टेन एक ऑप्शन दिया था,
तो आंसर है मॉन्टेन, ठीक है, ही वॉज अ फ्रेंच राइटर। चौथा क्वेश्चन मैंने पूछा था, वर्च्यू इज लाइक प्रेशियस ओडर्स, ODOURs, odors, more fragrant when they are incensed or crushed. Virtue is like precious odors, more fragrant when they are incensed or crushed. ये लाइन जो है पूछा था कि इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम विच राइटर। तो आपको पता है हमने वर्च्यू का ऐसे पढ़ते हैं, एनवी का ऐसे पढ़ते हैं। अच्छा, एक वन मोर थिंग, इफ यू कांट सर्च फॉरगेट, इट इज ओनली ऑन माई फेसबुक पेज, मेरे फेसबुक पेज पे ही है। ये मैंने कल रात को अपलोड किए थे कुछ क्वेश्चंस। आई वांटेड टू एंगेज द स्टूडेंट्स, आप शायद नोटिस नहीं कर, ये मैंने किसी ग्रुप पे अपलोड नहीं किए थे, क्योंकि ऐसे ही ग्रुप पे मैं आज अपलोड कर दूंगा, डोंट वरी। सो मैं एक बात कहना चाह रहा था कि हमें, बिकॉज वी आर स्टडिंग दिस एलिजाबेथन लिटरेचर, एंड मैं आपको एक होमवर्क देता हूँ आज। पहले आप बताओ होमवर्क करोगे? यस बोलो तभी दूं, देन विल डिस्कस दैट पर्टिकुलर थिंग। आप ना एक ऑफ फ्रेंडशिप का ऐसे जो है बैकन का, वो पढ़ के रखिए शॉर्ट में, उसके पॉइंट्स बना के रखिए। देन ही टॉक्स अबाउट 3 काइंड्स ऑफ बेनिफिट्स ऑफ फ्रेंडशिप, सो दे कैन आस्क यू दिस क्वेश्चन। ओके, दिस इज योर होमवर्क ऑफ फ्रेंडशिप। दूसरा आप होमवर्क लिखिए कि आपको सिमुलेशन एंड डिसिमुलेशन, दिस ऐसे बाय बैकन, क्योंकि हम लोग अदरवाइज कोर्स कैसे कंप्लीट करेंगे? बहुत सारे राइटर्स हैं जिनका डिटेल पढ़ना होता है, और एक ऐसे आप पढ़िए वर्च्यू और एक पढ़िए एनवी। 4 एसेज दे रहा हूं आपको, क्लियर? आप एक बार इन एसेज को ओरिजिनल पढ़ के देखिए, क्योंकि उसमें से वो बार बार, बैकन हैज बीन आई थिंक द मोस्टली कैनोनाइज्ड राइटर, तो उसके क्वेश्चंस पूछना लाजमी है और वो जरूर पूछेंगे आपसे। अब ये क्वेश्चन आ गया, देखो वहां से, ये एग्जाम का क्वेश्चन है कि वर्च्यू इज लाइक प्रेशियस ऑर्डर्स। तो अब क्योंकि वर्च्यू वर्ड आ गया तो उन्होंने ये नहीं पूछा कि ये कौन से ऐसे में से लिया है, instead they asked like this line is extracted from which writer, so has it been from Pope, from Lamb, from Johnson or Bacon? ठीक है, तो आपको मालूम है कि ये बैकन की लाइन है। जैसे एक एग्जांपल दीजिए, एक एग्जांपल मैं देता हूं आपको, आप आंसर दीजिएगा। ये किसने कहा है? रिवेंज इज अ वाइल्ड जस्टिस। दीजिए मुझे आंसर, रिवेंज इज अ वाइल्ड जस्टिस। आंसर माय क्वेश्चन, हु हैज सेड दिस एंड वेयर? And what is the importance of this particular line? Revenge is a wild justice. बताइए, revenge is a wild justice. No idea. मालूम नहीं है। Falseness is a mixture of alloy. हाँ ठीक है, कुमकुम ने आंसर दे दिया। Revenge is a wild justice is by Bacon। कौन से ऐसे में आता है? Revenge ऐसे में। तो रिवेंज के अंदर उन्होंने ये लाइन स्टार्टिंग में लिखी है, एंड दे कैन आस्क यू दिस क्वेश्चन, ठीक है। वाइल्ड जस्टिस कैसे हो गया कि तुमने मुझे मारा और मैंने तुम्हें मार दिया? तो इसका मतलब है, फिर नेक्स्ट लाइन क्या है कि व्हेन वी आर मोर प्रोन टू दिस काइंड ऑफ जस्टिस, वी पुट द ऑफिस आउट ऑफ, वी पुट द ऑफिस इन जंगल, है ना, और वी पुट द जस्टिस आउट ऑफ ऑफिस, ऐसे करके एक लाइन आती है। तो फर्स्ट लाइन्स पर्टिकुलरली, पर मैं ये नहीं कह रहा हूं दैट यू शुड पे अटेंशन ओनली टू द फर्स्ट लाइन्स ऑफ बैकन। एक लाइन उन्होंने बोली है कि व्हाट इज ट्रूथ, आस्क द जेस्टिंग पिलेट एंड वुड नॉट स्टे फॉर एन आंसर। एक क्वेश्चन है कि ऑफ ट्रूथ जो ऐसे, उसमें फर्स्ट लाइन है कि व्हाट इज ट्रूथ, आस्क द जेस्टिंग पिलेट एंड वुड नॉट स्टे फॉर एन आंसर। अब इस पे क्या क्वेश्चन आया नेट में कि कौन सा ऐसा ऐसे है बैकन का जिसमें उन्होंने पिलेट दिखाया है या क्राइस्ट दिखाएं? हाँ, क्राइस्ट दिखाएं। अब आप बताइए, इसमें क्राइस्ट का कोई रेफरेंस नहीं है, लेकिन क्वेश्चन क्या है? व्हाट द फर्स्ट डायलॉग इज, वो जो फर्स्ट लाइन है ऐसे की, व्हाट इज ट्रूथ, इन्वर्टेड कॉमास में क्वेश्चन लगा के, कॉमा, एंड आस्क द जेस्टिंग पिलेट। जेस्टिंग मतलब मजाक करते हो। पिलेट के बारे में पढ़िएगा, पिलेट जिसने क्राइस्ट को बंदी बनाया था और पूछा था क्वेश्चन। अब इसमें क्राइस्ट कहीं नहीं है, लेकिन दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड। तो जैसे ही मैंने ये क्वेश्चन देखा एग्जाम में, आपको पता है मैं एग्जाम में बैठता हूं और क्लियर करता हूं उसको, तो उसका कारण है कि जब मैं पढ़ाता हूं तो मैं उस चीज को पढ़ता भी नोटिस करता हूं, अच्छा कैसे क्वेश्चंस आते हैं, एंड दिस नॉलेज कैन हेल्प यू। तो आपको बहुत शांति से बैठ करके डिटेल में इन चीजों को पढ़ना चाहिए। तो आप अंदाजा लगाइए कि अगर किसी स्टूडेंट को वो याद करने बैठे कि कौन से ऐसे में क्राइस्ट आए, तो क्राइस्ट तो नहीं आए उस ऐसे में कहीं पर भी, ठीक है।
लेकिन क्राइस्ट इज हिडनली प्रेजेंट देयर। तो इसी तरह से ये जो क्वेश्चन है, वर्च्यू इज लाइक प्रेशियस ऑर्डर्स मोर फ्रेग्रेंट व्हेन दे आर इंसिस्ट और क्रश्ड, ये बैकन का लिखा हुआ है। उसके बाद एक क्वेश्चन मैंने पूछा था विलियम कैक्सटन का, तो गलती से वो डेट 1475 हो गई थी, बट इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1476। लेकिन क्वेश्चन था कि कहाँ, इंग्लैंड में कहाँ, लंदन में किस जगह। तो एक्चुअली वो जो पर्टिकुलर एरिया था वेस्टमिंस्टर, वहां पर इसको प्रिंटिंग प्रेस को खोला गया था। अब आज का एक क्वेश्चन लिखो आप थोड़ा डिटेल स्टडी कीजिए जाकर के इधर उधर से, कि कितनी बुक्स पब्लिश की कुल मिला करके, कुल कितनी बुक्स कैक्सटन ने पब्लिश की। दे कैन आस्क यू दिस क्वेश्चन नेक्स्ट टाइम। अगर ये पूछ रहे हैं कि एक एग्जाम में दे आर आस्किंग यू कि प्रिंटिंग प्रेस कब एस्टैब्लिश हुई, तो वो 1476 में हो गई। अब की बार पूछ लिया अभी वो किस जगह हुई, तो ये हो गया। अगली बार वो पूछ लेंगे कि उन्होंने, जैसे वो क्वेश्चन पूछते हैं कि विच वॉज द फर्स्ट बुक ही पब्लिश्ड, ठीक है, तो आपको मालूम है कि वो ट्रॉय से रिलेटेड जो बुक है वो उन्होंने पब्लिश की थी। तो एक और क्वेश्चन पूछ लेंगे कि क्या वॉज ओनली इंग्लिश बुक्स ही पब्लिश्ड। ऐसे करके वो क्वेश्चन पूछते रहते हैं, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। इन टुमारोज लेक्चर आई विल बी टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट पार्ट। और क्विज के लिए रेडी रहिए, जो वीडियोस मैंने कहा उनको देखिए एंड कंप्लीट दिस होमवर्क। थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।